Hello students, good evening. It is 8:30 p.m. evening and I am making this video for you. In the series of modals, today we are going to do the use of need. Students, first of all, keep one thing in your mind very clearly, that need is a semi-modal like that of used to, dare and this need. These three modals are semi-modals. Okay, why semi-modals? Because they can be used as modals, mean as auxiliary verb, mean as helping verb, as well as principal verb. When we are talking about principal verb, this can be conjugated with do. At that time we can use s form with need. For example, he needs my help, I need your help. That is not modal, that is principal verb. Okay, one thing is very clear about that, that need can be used. This is semi modal. Why semi modal? Because it is modal as well as principal verb. When we are using need as a modal, जब हम नीड को मॉडल के रूप में यूज कर रहे हैं तो ये सिर्फ दो ही सेंटेंसेस में यूज हो सकता है, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में. नीड कैन बी यूज्ड in negative sentences and interrogative sentences, not in affirmative sentences. When we are saying I need your help, this is not modal, this is principal verb. That action is something else. Number two, students, it means there is no necessity or obligation. When we were doing must, that means necessity. Must में क्या था? Must का meaning था necessity और obligation. It is necessary, it is obligatory. ठीक है, compulsion, necessity और obligation. No, it means there is no necessity or obligation. Need means there is no necessity, it is not necessary. You can write, आप लिख सकते हो, need is equal to it is not necessary. ओके, स्पेलिंग का ध्यान रखना, कई बार छूट जाता है, एक आधा लेटर कोई छूट गया तो ऐसा मत बोलना सर ने गलत लिख दिया, छूट जाएगा जल्दी जल्दी, तो आप उसको देख लेना. ठीक है, तो इट मीन्स देयर इज नो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन. Then no s form, these verbs are known as defective verbs. इनको defective verb इसलिए बोलते हैं, जैसे आप as principal verb need को यूज करोगे तो क्या करोगे, he needs my help but I need your help. I के साथ यूज कर रहे हो need, लेकिन he के साथ यूज कर रहे हो needs. यहाँ पर किसी के साथ भी s नहीं आएगा, चाहे he है, चाहे I है, चाहे she है. फॉर एग्जाम्पल, I need not teach you, you need not stand here, he need not stand here. Suppose you are writing, आपको common errors में आ जाता है, he needs not help me. No, this is wrong. needs नहीं होगा as modal. ठीक है, तो number one, it means there is no necessity or obligation. Need as a modal is used only in negative and interrogative sentences. There is no s form. ठीक है, does not take to with the infinitive verb. इसमें infinitive verb जो है, जो इसके बाद that follows it, does not take to. infinitive verb कैसे बनते हैं बच्चे? to plus first form of the verb is infinitive. तब तक वो इन्फिनेटिव नहीं होगा जब तक टू नहीं लगे. जैसे आई वॉन्ट टू हेल्प यू, टू हेल्प इज इन्फिनेटिव. आई वॉन्ट टू गो इज इन्फिनेटिव. आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, आई वॉन्ट इज प्रिंसिपल वर्ब. टू राइट, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू राइट इज इन्फिनेटिव. ओके, तो बच्चा पार्टी, लाइट चली गई है, लेट अस कंटिन्यू. थोड़ा दिखाई दे रहा है, एक लाइट जल रही है अभी भी. डज नॉट टेक टू विद द इन्फिनेटिव वर्ब. ठीक है, दैट फॉलोज इट. जो नीड के बाद एज मॉडल आप यूज करोगे वर्ब इन्फिनेटिव, उसके साथ टू नहीं आएगा. अगर लगा है तो उसको आपने निकाल देना है, दैट इज एरर.
ठीक है। फिर आपको मैं बताऊंगा नीड नॉट और मस्ट नॉट में क्या डिफरेंस है। तो एक बार जल्दी जल्दी में हम क्या करेंगे कि नीड प्रिंसिपल वर्ब भी है, ठीक है, जिसमें उसका मीनिंग कुछ और है, और मॉडल वर्ब भी है। जब हम मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे दैट इज़ यूज्ड ओनली इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, देन इट मीन्स नो necessity or obligation, there is no necessity, okay, it is not necessary, it is not obligatory, and need doesn't have s form when used as a modal. Then students does not take to with the infinitive verb. तो अभी हम आपको सेंटेंस बताते हैं करके। यहां देखिए हम कैसे सेंटेंस यूज करेंगे। देखो, यू नीड नॉट टेक ऑफ योर शूज, ठीक है, यू नीड नॉट टेक ऑफ योर शूज। सपोज आपके रूम में कोई एंटर कर रहा है, आप उसको बोल रहे हो, वो शूज खोलने लगा, यू ओ डोंट टेक इट ऑफ, ओके, यू नीड नॉट टेक ऑफ योर शूज मीन इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड टेक योर शूज ऑफ। कोई ज़रूरत नहीं है, आप शूज के साथ अंदर आ सकते हो, ठीक है। हाँ, इफ़ यू वांट यू कैन टेक ऑफ योर शूज, आप चाहते हो तो निकाल भी सकते हो, नहीं चाहते तो कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। सपोज आप किसी ऑफिस में चले गए, ठीक है, और आपको उन्होंने कहा कि आई एम बिजी, द ऑफिसर इज सेइंग दैट आई एम बिजी, यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, एंड व्हाट डू यू stand outside of the office. So the officer will say you need not stand here, I'll call you, ठीक है, आप कहीं जा सकते हो, I will call you, ठीक है, आपको मैं फ़ोन कर दूंगा, ओके, राइट। वो क्या बोल रहे हैं, you need not stand here मीन it is not compulsion that you should stand here, यहाँ 1 घंटा तक खड़े रहोगे। तो उन्होंने आपको क्या दे दिया, एक तरह की क्या दे रहे हैं इसमें, नीड में रिलैक्सेशन इज देयर, आपको रिलैक्स कर दिया गया, छूट दे दी गई एक तरह से, ठीक है, रिलैक्स, यू आर रिलैक्स, कि चलो यू नीड नॉट टेक ऑफ योर शूज। एक एग्जांपल और देता हूं बच्चों, जैसे मान लो संडे को आपकी क्लासेस लगती है, जहां पर भी आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हो, आपको डेली तो सैटरडे तक क्लासेस होगी, लेकिन मान लो संडे को आपको बुलाया जाता है, टीचर ये कहते हैं कि you will have to attend your classes on Sunday. One of the students say, sir, I have a problem, my father is not feeling well, so I will have to stay at my home. Now the teacher will relax you from attending the classes, he will say you need not come, you need not come, ठीक है। तो यहां पर देखिए नीड नॉट, इन नेगेटिव सेंटेंसेस में ही आपने नीड का यूज करना है, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन यू आर यूजिंग इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सपोज यू आस्क योर टीचर, सर माय फादर इज नॉट फीलिंग वेल, सो आई कैन नॉट कम ऑन संडे, नीड आई कम, नीड आई कम, नीड आई कम टू अटेंड द क्लास, क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव में भी आ गया और नेगेटिव में भी आ गया। प्लस नेगेटिव में और कैसे आएगा बच्चों, अगर नीड नॉट नहीं आ रहा तो आ सकता है जैसे नो वन वर्ड दिया होगा, या नोबडी वर्ड दिया होगा, या नॉट अ थिंग, ऐसे कोई वर्ड दिया होगा, जैसे नो वन नीड थिंक दैट, नो वन नीड थिंक दैट शी इज बिजी, ठीक है, नोबडी नीड नो द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, ठीक है, तो वहाँ पर नो है क्योंकि वो नेगेटिव बन गया। अदरवाइज ऐसे आप हमेशा क्या करेंगे, नीड नॉट करेंगे। एक आपको मैंने ये बताया था, हाँ अब ये देखिए, प्रिंसिपल ने पूछा वो बच्चा क्यों नहीं आया, संडे को तो क्लासेस लगनी थी, आपने कहा सर आई हैव टोल्ड हिम ही नीड नॉट कम। मैंने आपको पॉइंट क्या बताए कि एक तो ये नेगेटिव में यूज होगा, ये हो गया। नंबर 2, दिस कैन बी यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। नंबर 3, नो एस फॉर्म, ही, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ क्या करते हैं, एस फॉर्म लगाते हैं, ही नीड्स नॉट, नो दिस इज रॉन्ग, एज मॉडल दिस इज डिफेक्टिव वर्ब,
दैट डजंट टेक एनी एस, सो ही नीड नॉट कम, एस फॉर्म भी होगी। फिर मैंने आपको कहा कि व्हेन द वर्ब फॉलोइंग दिस टू, दिस इज इन्फिनेटिव, इसको आप ये मान के चलना कि दिस इज इन्फिनेटिव, विदाउट टू इन्फिनेटिव नहीं होता, लेकिन देयर आर सम बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है, उसमें बिना टू के भी इन्फिनेटिव होगा। तो अगर आपको पेपर में सपोज ऐसे आ गया, ही नीड नॉट टू कम, मैक्सिमम लोग ऐसे बोलते हैं, यू नीड नॉट टू हेल्प मी, यू नीड नॉट टू कम, you need not to go to school, no, this is wrong, you need not to is wrong, he need not to come, I need not to help you, no, this is wrong, he need not come, I need not go to school on Sundays, okay, you need not stay here, you need not read a book, that is okay. So all the points are very much clear. Need mean not compulsion, not necessary, you need not come in, it is not necessary for, देखो कितना लंबा सेंटेंस बना, उसको आपने मॉडल से छोटा बना दिया, सुंदर, you need not come, वैसे आप क्या बोलते, it is not necessary for you to come, okay, need I come, is it necessary for me to come, बड़ा सेंटेंस बन गया, he need not come, is it he, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू कम, तो कितने सेंटेंस बन के देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर सभी पॉइंट्स हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि नीड एज मॉडल एस नहीं आएगा, इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं आएगा, हाँ अगर नो पहले आ जाता है तो टू आएगा, जैसे यू हैव नो नीड टू कम, लेकिन यहां पर ये मॉडल नहीं है, यहां पर ये मॉडल नहीं है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब तो यहां है, यू हैव नो नीड टू कम, तब टू कम आया आगे जब यहां नो है, ठीक है, नॉट नहीं है, नीड नॉट बाद में आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने ये ध्यान रखना, राइट। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड नॉट एंड मस्ट नॉट, नीड नॉट, मस्ट नॉट, टोटली डिफरेंट बेटा, एब्सोल्युटली डिफरेंट, नीड नॉट एंड मस्ट नॉट। नीड नॉट मीन्स it is not necessary to, and it means it is prohibited, it is prohibited। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं, मान लीजिए किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में कोई 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए यू आर प्रिपेयरिंग, गर्ल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है, वो स्कूल आती हैं, कॉलेज आती हैं, यूनिवर्सिटी आती हैं अपने कल्चरल प्रोग्राम के लिए। अब मान लो 15 अगस्त जो वो मंडे को है, तो आपके जो इंचार्ज होंगे वो क्या कहेंगे कि बेटा आपने संडे को भी रिहर्सल करने आना है, ठीक है, ताकि हमारी अच्छी परफॉर्मेंस हो, सो यू विल हैव टू कम ऑन संडे। अब उसमें एक स्टूडेंट ऐसा आता है कि सर आई एम वेरी सॉरी, माई फादर इज़ नॉट फीलिंग वेल, सो आई मे नॉट बी एबल टू कम। तो टीचर उसकी प्रॉब्लम को समझ करके क्या करते हैं, टीचर उस बच्चे को क्या बोलते हैं, बेटा यू नीड नॉट कम, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू कम ऑन संडे। इट इज़ नॉट नेसेसरी जब है तो ये रिलैक्सेशन है, द टीचर वॉन्ट्स टू से दैट बेटा इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कम, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम डोंट कम। देखिए इट इज़ नॉट नेसेसरी में क्या है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आना चाहते हो तो मैं धक्के मार के बाहर नहीं निकालूंगा, आप आ भी सकते हो सकता है आपके फादर को लुक आफ्टर करने के लिए कोई घर पे आ जाता है, ठीक है, तो आपको बोलते कि नहीं आप स्कूल जा सकते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी मीन रिलैक्सेशन, यू कैन कम इफ़ यू वांट, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू कम, इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम यू नीड नॉट कम, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, अब वही रिहर्सल चल रही है और कुछ बच्चे हेड के पास जाते हैं कि देखिए सर, सच एंड सच गर्ल, ए नाम की कोई लड़की है, वो क्या करती है कि आपकी
प्रेजेंस में तो ठीक काम करती है, लेकिन जैसे ही आप नहीं होंगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हमें संडे को आना पड़ेगा, लेकिन टीचर संडे को नहीं आएंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी यू डू दिस बट आई विल नॉट कम। अब आपकी प्रेजेंस में ये लड़की हम लोगों को भी काम नहीं करने देती है, रिहर्सल नहीं करने देती है, हमें डिस्टर्ब करती है। अब प्रिंसिपल या इंचार्ज या कोई भी उन्हें क्या कहेंगे, उस लड़की को बुला बुला के क्या कहेंगे, मिस ए प्लीज़ कम, यू मस्ट नॉट कम ऑन संडे। क्योंकि टीचर नहीं आ रहे होंगे तो वो आपको तंग करेगी। तो क्या कहा, यू मस्ट नॉट कम। मस्ट नॉट कम मीन डोंट कम, नहीं आना है। योर एंट्री इज प्रोहिबिटेड ऑन संडे, आप नहीं आओगे। जैसे आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में, किसी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, एसडीएम के ऑफिस में कोई काम है एंड ही इज बिजी, द ऑफिसर इज बिजी and you are to stand outside of his office and you are standing there, if he is saying you need not stand here, तो आपको ये मतलब कि you can stand if you want, लेकिन आप नहीं भी खड़े हो सकते हैं, आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन suppose you must not stand here mean your action of standing is prohibited, खबरदार, ठीक है, खबरदार यहाँ खड़े हुए तो यू मस्ट नॉट स्टैंड हेयर। सपोज कोई ऐसे बोल देता यू नीड नॉट स्मोक हेयर, ओके यू नीड नॉट स्मोक हेयर, चला गया तो कोई नहीं, पी लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं, स्मोकिंग कर रहा हो। नो, यू नीड नॉट में तो बोल दिया कि ज़रूरत नहीं है यहाँ पर स्मोकिंग करने की, अगर करनी तो कर लो, लेकिन यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर मीन दिस एक्शन ऑफ स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, मना है। तो इनमें दोनों में फ़र्क है। इनको लोग एक जैसा सोचते हैं, मस्ट नॉट कम टू स्कूल ऑन संडे एंड यू नीड नॉट कम टू स्कूल ऑन संडे। व्हेन यू आर सेइंग यू नीड नॉट come to school on Sunday mean it is not necessary, and when you are saying you must not come to school on Sunday mean it is necessary that you should not come, your entry is prohibited। इसमें आ भी जाओगे तो आप अंदर एंट्री कर सकते हो, इसमें अगर आ गए तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यू विल बी शंट आउट ऑफ द क्लासरूम बिकॉज योर एंट्री इज प्रोहिबिटेड। तो मस्ट नॉट और नीड नॉट में डिफरेंस है बच्चे। तो आई होप कि आप नीड को समझ गए होंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।